Hey everyone, I welcome you all to the first lecture of CA Final AFM. Now, if your examination is in the month of 24, 25, 26 or 27, it doesn't matter. Okay? If you want to crack your first examination and AFM is that subject which is troubling you, well, don't need to worry further. Okay? I'll tell you the reasons also in this. Well, to give a bit of introduction about myself, my name is CS Harshadan Gaikwad. I've been teaching financial management for the final students a lot of years now. You will find a lot of videos regarding financial management on our HGP YouTube channel. Let it be derivatives, forex, capital budgeting, your portfolio, mutual funds, etc. The reason why I'm telling you this is because my job is to tell you this subject in the most simple manner. Now, there are a lot of myths regarding this AFM. Well, number one, sir, हम कितना भी पढ़े, किससे भी पढ़े, let it be any renowned faculty. The point is, पेपर के समय हमको कुछ याद नहीं आता. I'll tell you the reason also for that. Number one reason कि it is a completely theory plus practical subject. सर formulas learn कर रहे हैं पर हमको एग्जाम में याद नहीं आ रहे. And the reason behind all this fuzz is that a lot of faculties they will go into a deep technical analysis. Excel sheet खोलेंगे, फिर डीमैट अकाउंट खोलेंगे, फिर चार्ट्स खोलेंगे. अरे भैया गरज ही नहीं है उसका कुछ अभी. We can do that after we become CA also. अभी वो गरज नहीं है उसका. Now main thing is what the main concern is what कि भैया एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आएगा, वो सबसे मेन है. Like if you are not touched the module, you have not done anything boss. अगर AFM में मैं कुछ कंसेप्ट पढ़ रहा हूं, now let us say today we are going to start with portfolio management. अगर मैं portfolio management पढ़ रहा हूं और अगर मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट पे ही खेल रहा हूं कि बीटा क्या होता है, व्हाट इज दिस रिस्क फ्री सिक्योरिटी, दैट्स अ गुड थिंग. आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट द पॉइंट इज इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द पेपर, everything is of no use. Okay, so there has to be a bit of exam oriented approach. That is what we are supposed to do. Okay, sir, आप और बाकी फैकल्टीज AFM के लिए क्या फर्क क्या है उसमें? See, if you've seen, I don't know how many of you done it. If you're not, go and do it. If you've watched my lectures, it will be in the most easy manner. मतलब अगर कोई concept में difficult भी है, my job is to tell you the most simplest manner, simplest language basically. So ये जो batch है, वो आपके लिए it will be a lot of benefit. And also one more thing, for AFM, first of all, you have to do smart study. Okay. आपके ही मॉडल का ये क्रक्स है, एक्सट्रैक्ट है. 15 चैप्टर आपको दिखेंगे. ये लास्ट चैप्टर के स्टार्ट ऑफ फाइनेंस का. लॉट ऑफ चैप्टर देयर, यू विल सी अ लॉट ऑफ चैप्टर्स. ओके, एंड द बेसिक पॉइंट ऑफ दिस इज ये सब्जेक्ट आपके लिए एकदम नया नहीं है. व्हाई? सीए इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल किया था, डिविडेंड पॉलिसी किया था, ये डन कैपिटल बजटिंग, हमने वर्किंग कैपिटल किया था, लेवरेज किए थे, ये सब कुछ किया है. वो अपना छोटा सा बेस है. नाउ टॉकिंग एक्सक्लूसिवली फॉर AFM, स्टार्ट कहां से करना है, एंड कहां से करना है, आई टेल यू द मेन चैप्टर्स जो आपको सबसे पहले पिकअप करना है. और सबसे पहले आपका आता है ये वाला चैप्टर जो आपके स्क्रीन के सामने है. दिस विल बी योर फर्स्ट स्टार्टिंग चैप्टर एंड दैट इज व्हाट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, व्हिच वी आर गोना स्टार्ट ऑफ टुडे. और if you're watching these lectures, my humble request to all of you is please maintain a diary. एक डायरी मेंटेन करेंगे. I'll tell you reason also for that. बहुत बैचेस लिए मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के. I've got AIs also, all India ranks भी निकाले बच्चों ने. In why am I telling all of this stuff? Not to show off, but to tell you that please keep a diary. इन बच्चों ने डायरी मेंटेन की थी जो आपको लास्ट में काम में आएगा. Because see, फॉर्मुलाज बहुत रहने वाले हैं. मैंने आपको पहले ही बोले फॉर्मुलाज देयर, मतलब बहुत सारे फॉर्मुलाज है. But don't worry, if you do according to my whatever I'm telling you, this will be the most, and you will score a goddamn exemption in this paper. Okay, as simple as that. Okay, so without wasting any further time, let us start with our first chapter for today, and that is your portfolio management. Okay, handwritten notes. I want everybody to write everything down properly. Make sure you write it down. Okay, portfolio management. Okay. आराम से दिस इज 12 मार्क्स के ऊपर. ओके, 10 प्लस मार्क्स एक्सपेक्ट करेंगे आप. इसमें क्या क्या आता है, कौन सा क्या आता है, हाउ इट इज गोइंग टू बी, आई टेल यू एवरीथिंग. पहले चैप्टर का इंडेक्स बनाएंगे. ओके,
whenever you dig into any chapter, please prepare a index first. मतलब ये जान के लेंगे भाई उसमें करना क्या है मुझे. ओके, सबसे पहले before I start, okay, I'll be talking only about this chapter. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. द मोमेंट ये जो वर्ड आपके स्क्रीन के सामने आता है, ये पोर्टफोलियो, आपके दिमाग में क्या पहले आता है? सर पोर्टफोलियो का मतलब यही होता है एक बंच, एक कलेक्शन. कभी कभार अपन फोटोग्राफर को बोलते हैं यार मेरा पोर्टफोलियो बना के दे अच्छा खासा. इसका मतलब क्या, आप उसको क्या बना के बोल रहे हैं? कोलाज बनाने को बोल रहे हैं आपके फोटोज का. इट्स अ बेसिकली कलेक्शन. जब अभी आपका इंटर्नशिप चालू है, आर्टिकलशिप चालू है, तो पॉइंट क्या होता है भाई साहब, जो भी आपको महीने का पगार मिल रहा है, जो भी पैसा मिल रहा है आपको, ठीक है, अगर आप उससे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड लेट अस से यू हैव 1000 रुपीज विथ यू टू इन्वेस्ट, द पॉइंट इज यू विल नेवर इन्वेस्ट इन वन कंपनी. तो जैसे द कोड गोज, नेवर इन्वेस्ट और नेवर कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. सेम थिंग हैपेंस विद दिस. सर इतने सिक्योरिटीज मैंने क्या किए? इन्वेस्टमेंट. मतलब ये मेरा पोर्टफोलियो बन रहा है. सो पोर्टफोलियो इज नथिंग बट basket of securities. It is a basket of security. Understand very properly. Basic हो गया ना, formulas में कुछ दम नहीं है. It's very simple. Okay, basket of securities. Okay sir. तो मुझे आप एक चीज बताएंगे, ये जो पोर्टफोलियो मैंने अपन जो कर रहे हैं चैप्टर, फिर इसका मकसद क्या है? मतलब क्यों कर रहे हैं भाई, वो तो आप बताओ. सर जब हम सीए इंटरमीडिएट में जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल करते थे, तो उसका एक मकसद था, एक इंटेंशन था. क्या था मकसद बताओ? कि कंपनी को जो पैसा रेज कर रहा है कंपनी, उसका कॉस्ट क्या है. अपन कॉस्ट ऑफ डेट निकालते थे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालते थे. तो एवरी चैप्टर हैज एन ऑब्जेक्टिव, राइट? सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज बेसिकली हाउ इज योर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस एज रिगार्ड टू द मार्केट. आप सी योर पोर्टफोलियो जितना भी आपका कलेक्शन है सिक्योरिटीज का, वो कंप्लीटली किसके ऊपर बेस्ड है बॉस? सर मार्केट के ऊपर बेस्ड है. और मार्केट का मतलब क्या बताओ? एक अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं सर, ये दो चीजें, एक तो आपका रहेगा सेंसेक्स और एक तो आपका रहेगा निफ्टी. ये दो चीज में आपका पोर्टफोलियो और ये खेलने वाले. तो सबसे पहले आपको ये पूछेंगे वो कि इस पोर्टफोलियो के बारे में फीचर्स पूछेंगे. आपको ये भी पूछा जाएगा कि इसका बीटा कितना है, इसका वैरिएंस कितना है, एंड ऑल दैट स्टफ. ओके, तो सबसे पहले अपन एक छोटा सा काम करेंगे, और वो काम ये है कि we'll understand the concepts of the chapter and then I'll go ahead. सबसे पहले अब ये सीखेंगे रिटर्न ऑफ सिंगल सिक्योरिटी. देखो भाई साहब, वी डोंट हैव टू रश टू पोर्टफोलियो फर्स्ट. पोर्टफोलियो पे जाने से पहले आपको इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न और रिस्क जानना है. जब मैं सिंगल सिक्योरिटी का सब कुछ जान लूंगा, देन ओनली आई कैन जंप टू द वर्ड कॉल्ड एज पोर्टफोलियो. सेकेंड, अगर देखो पहले 2-3 पॉइंट में सिर्फ सिंगल 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 ही सिक्योरिटी आएंगे, उसके बाद मैं पोर्टफोलियो के ऊपर जाऊंगा. तो ये लिखा आपने. उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिंगल सिक्योरिटी, वही खेल रहे हैं अपन. थर्ड, व्हाट इज द रिस्क ऑफ सिंगल सिक्योरिटी. अगर आप सीक्वेंस से जा रहे हो तो आपको ये थोड़ा फर्क समझ में आएगा. इनफैक्ट मैं आपको गारंटी देता हूं, इन 1 वीक, एक वीक में यू कैन लर्न ऑल द पोर्टफोलियो फॉर्मूलाज विदाउट कुछ रट्टा मारने का गरज नहीं है, कुछ नहीं. सीक्वेंस फॉलो करेंगे आप. सर पहले 3 जो आपने बताए वो सिंगल सिक्योरिटी, सिंगल सिक्योर, सिंगल सिक्योरिटी. आपने अब तक पोर्टफोलियो लिखा ही नहीं है, नहीं लिखा मैंने. फोर्थ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. इसमें थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स भी है, नॉट दैट मच बट इट्स इजी. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ओके सर, ये हो गया. उसके बाद आफ्टर दिस आई विल स्टार्ट ऑफ विथ पोर्टफोलियो. फिफ्थ पे पोर्टफोलियो रिटर्न का मतलब क्या है. और एक बात भाई साहब, मैं आपको और एक चीज दिखाता हूं. मैं जस्ट ओपन इट ओवर हियर. दिस इज योर मॉड्यूल. कितना दिख रहा है आपको? 42 questions are there. 42. There are 42 questions over here. This is module, okay? Basically, ये questions आपने को target करना है. And trust me one thing, if you do all these questions, no, I don't think anyone is going to stop you in portfolio management. Nobody. Okay? ये करेंगे. Past examination questions भी करेंगे अपन. Okay? Portfolio return हो गया. उसके बाद
we will do portfolio risk. After this, we will do, just write down the pointers. You need to understand what is there in that chapter. Then I'll start off with the chapter. आपको ये भी समझ में आता है कि आप उस चैप्टर में कहां तक पहुंचे हो, कितना बाकी है, हाउ मच आई एम सपोज टू डू, व्हाट आई एम सपोज टू डू, ये तभी समझ में आएगा जब आप पूरा इंडेक्स लिखोगे. ओके, ये हो गया आपका. अच्छा चलो, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन. concept of correlation. Next, concept of covariance. Next, concept of systematic and unsystematic risk. Next, concept of beta. Very, very important. Very important. Next, what is portfolio beta? What is CM? आप जब एक एक कंसेप्ट समझोगे ना, आपको पूरा चैप्टर इजी लगेगा. ओके, राइट नाउ ऑल द, और ये आपके फर्स्ट पेज पे दिखना चाहिए, फर्स्ट पेज पे. ओके, एंड आफ्टर दिस कीप इट ब्लैंक. इसके बाद ब्लैंक रखेंगे. जैसे भी अपन अपडेट करते हैं, बिकॉज इट विल नॉट मेक एनी सेंस फॉर मी टू राइट एवरीथिंग, आपको पूरा बाउंस हो जाएगा. तो जैसे पेज ब्लैंक रखो, जैसे जैसे नए नए कंसेप्ट अपडेट होते हैं अपन यहाँ पे आके वो लिखेंगे. ठीक, चलो, कैन आई स्टार्ट विद द फर्स्ट कंसेप्ट जो इसका था. सर, तो सीए फाइनल एएफएम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फर्स्ट लेक्चर है ये. मैं फर्स्ट कंसेप्ट शुरू कर रहा हूं, एंड दैट इज रिटर्न ऑफ सिंगल सिक्योरिटी. पहले वी विल अंडरस्टैंड वन थिंग, कि भाई साहब एक एक सिक्योरिटी का रिटर्न क्या है. मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं. अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि एज ए इन्वेस्टर व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो. ये सेम कॉन्सेप्ट अगर आपका ध्यान रहेगा तो हमने सीए इंटरमीडिएट में जो आपका एमएनएम का अप्रोच था, मोदी गिलानी मिलर, उसमें ये अपने कंसेप्ट यूज किया था. रिटर्न का मतलब भैया दो चीजें होती है. एक तो आपका होता है डिविडेंड प्लस कैपिटल अप्रिशिएशन. कैपिटल अप्रिशिएशन मतलब अगर मैं भी किस पे पैसा डालता हूं कंपनी में, मैं दो चीज तो एक्सपेक्ट करूंगा ही ना भाई साहब. एक तो मैं डिविडेंड एक्सपेक्ट करूंगा और एक कैपिटल अप्रिशिएशन, जो पैसा डाला है वो तो बढ़ना चाहिए. ये दो चीजें हैं. अभी इसमें आपने को सिर्फ किसमें लिखने का, ये वर्ड्स में लिखने का. ये D1 हो गया प्लस P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0 इंटू 100. अरे सर रुको रुको, क्या किया आपने, ये इतना बड़ा क्या लिख रहे हैं आप. पे अटेंशन, दिस इज वेरी सिंपल. दिस इज वेरी वेरी सिंपल. ये जो आपने किया अभी यहाँ पे अटेंशन. टेल मी वन थिंग. D1 का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड. आपको ये एब्रिविएशन मालूम होने चाहिए. D0 का मतलब क्या होता है, करंट डिविडेंड. 0 स्टैंड्स फॉर द ईयर. 1 D1 हो सकता है, D2 हो सकता है. तो बेसिकली अपन जब फॉर्मूला लिखते हैं तो करंट डिविडेंड और एक्सपेक्टेड डिविडेंड होता है अगले साल का. P1 माइनस P0 का मतलब क्या है, प्राइस एट द एंड और प्राइस एट द बिगनिंग. उसका ही मैं कैपिटल अप्रिशिएशन लिख रहा हूं वहां पे. कभी भी रिटर्न जो होता है वो बेस से कंपेयर किया जाता है, और आपका बेस मतलब है जो आपने इनिशियल कैपिटल डाला है, जो आपका इनिशियल प्राइस रहेगा. तो ये आपका हो गया रिटर्न ऑफ सिंगल सिक्योरिटी. ओके सर, सिंपल. नेक्स्ट, ये हो गया एक कंसेप्ट. अभी नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है इसके ऊपर, एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब क्या है. एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब क्या है, ध्यान देंगे प्लीज. अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा पता है तो उसमें कंसेप्ट आता था मीन करके. हम उसको एक्स बार, वाई बार, एक्सेट्रा ऐसे लिखते थे. एक्सपेक्टेड रिटर्न का ये मतलब होता है, एन इन्वेस्टर जब भी वो इन्वेस्ट करता है, वो इन्वेस्ट किस लिए करता है, ही इज नॉट इन्वेस्टिंग फॉर सम पास्ट रिटर्न्स, ही इज इन्वेस्टिंग फॉर फ्यूचर रिटर्न्स. तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, एन इन्वेस्टर
इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर रिटर्न्स, फॉर फ्यूचर रिटर्न्स। मुझे आप एक चीज बताओ यार, सिंपल, आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन, कम ऑन, टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग। अगर मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है तो इसके दो मेथड्स है, ध्यान देंगे, ये एक, ये दो। यहां पे प्रोबेबिलिटी गिवन और प्रोबेबिलिटी नॉट गिवन। अगर प्रोबेबिलिटी दिया है तो आई विल सिंपली मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी विद द रिटर्न, सिंपल सिंपल। अगर प्रोबेबिलिटी नहीं दी है तो भाई साहब सिंपल एवरेज लेके मैं खत्म करूंगा। सर एक मिनट रुको जरा, सर पहला कंसेप्ट जो अपन ने किया वो किया अपन ने रिटर्न ऑफ सिंगल सिक्योरिटी, ओके। मैं अभी सेकंड कंसेप्ट के ऊपर आया हूं। सेकंड कंसेप्ट के ऊपर मैं पहले क्वेश्चन में ये चेक करूंगा कि प्रोबेबिलिटी का कॉलम दिया है या नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है, मेरा काम बहुत इजी है। अगर उन लोगों ने पूछा है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने को, तो मैं सिर्फ क्या निकालूंगा भाई साहब, सिंपल एवरेज ऑफ व्हाट, पास्ट एनुअल रिटर्न, सिंपल एवरेज ऑफ पास्ट एनुअल रिटर्न, सिंपल, एकदम सिंपल। रिटर्न तो ऑलरेडी दिए रहेंगे, मुझे से उसका एवरेज निकालने का, खत्म हो गया, मुझे मेरा मीन मिल जाएगा, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। सर अगर प्रोबेबिलिटी दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न, मतलब जो भी दिया रहेगा प्रोबेबिलिटी दिया है ना क्वेश्चन में, और रिटर्न भी रहेगा, मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जो भी उनका समेशन रहेगा वो मेरा आंसर रहेगा एक्सपेक्टेड का, सिंपल है एकदम। दो चीजें अपन ने किया अभी, एक तो अपन ने किया रिटर्न ऑफ सिंगल सिक्योरिटी किया, और फिर अपन ने ये वाला किया, क्या, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी किया, ओके सर। फ्लो में जाने का है, मैं अभी तक पोर्टफोलियो के कंसेप्ट के ऊपर नहीं आया हूं, अपन जो भी कर रहे हैं वो सिंगल सिक्योरिटी का कर रहे हैं भाई साहब, ओके चलो, ओके सर। नाउ सर थर्ड क्या है अपने, अपना वन सेक, व्हाट इज द थर्ड थिंग नाउ? नाउ यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होता है, प्लीज पे अटेंशन। रिस्क ऑफ सिंगल सिक्योरिटी, अभी मुझे आपका पूरा ध्यान चाहिए, मुझे आपका पूरा ध्यान चाहिए, ठीक है, ध्यान देंगे आप प्लीज। पूरे पोर्टफोलियो में जहां पे भी रिस्क ये वर्ड आएगा, रिस्क, वरायंस, इसका यही मतलब हो रहा है कि आपको एक मीडियम से ये निकालना पड़ेगा। अगर वो बोल रहे कि रिस्क निकालो तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए टेंशन मत लो, इसके लिए ऑलरेडी एक बंदा रेडी है, उस बंदे का नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन, उस बंदे का नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। सर वो सब ठीक है, अभी आपने इतना बोला कि रिस्क निकालने के लिए इसका अपन यूज करेंगे, बट ये बताएंगे भैया रिस्क का मतलब क्या होता है वो तो बताओ पहले, तो इसका मतलब ही समझा नहीं है तो ये फायदा क्या निकालते हैं? रिस्क का मतलब ये होता है, इट इज द डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न। आराम से सोचेंगे क्या लिखा है, आपको मैं टाइमलाइन ड्रॉ कर दो यहां पे, ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न था, बोले तो एक्स बार, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यू एक्सपेक्टेड 10% फ्रॉम द कंपनी, बट भाई साहब आपको 7% मिला, ये आपका एक्चुअल रिटर्न है, ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न था, ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न था। तो मुझे आप बताएंगे इन दोनों में जो गैप दिख रहा है ना, तो यू एक्सपेक्टेड दिस मच, कितना मिला आपको, इतना मिला, तो आप मुझे बताएंगे ये जो गैप आ रहा है ना बीच में, ये आपका क्या है, ये आपका रिस्क है, दिस इज द रिस्क विच यू हैव टेकन नाउ। अब ये रिस्क निकालने के लिए, बिकॉज ये डेविएशन है बराबर, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द डेविएशन, और यही डेविएशन बच्चा अपने को निकालना है किसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एक मीडियम है, एक माध्यम है, क्या कंप्यूट करने के लिए बॉस, रिस्क कंप्यूट करने के लिए। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जहां पे भी रिस्क ये वर्ड आएगा ना,
तो आपको ब्लाइंडली पहले सबसे दिमाग में जो पहले स्ट्राइक होगा वो यही स्ट्राइक होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है मुझे। क्या अभी तक मैंने पोर्टफोलियो शुरू किया है, कुछ फॉर्मूले शुरू किए? नहीं सर, नहीं किए। आप अभी जितना भी सिखा रहे हो वो सबका सब पूरा ध्यान किसके ऊपर है? सिंगल सिक्योरिटी के ऊपर है। ये एक पॉइंट हो गया। ओके सर, ओके, समझ में आ रहा है? कोई दिमाग में जा रहा है? दिमाग में जा रहा है सर। सर पर अभी तक आपने रिस्क का फॉर्मूला बताया नहीं, अभी लिखने जा रहा हूं मैं, ध्यान देंगे प्लीज। तो अगर रिस्क ऑफ सिंगल सिक्योरिटी पूछते तो भाई साहब वापस वो दो चीज ये लास्ट तक मैं करने वाला हूं। ऐसा आपके बुक में भी ये फ्लो चार्ट चाहिए बॉस। एक तो प्रोबेबिलिटी नॉट गिवन और एक है आपका प्रोबेबिलिटी गिवन। सर एक मिनट, वही चेक करना पड़ेगा मुझे, प्रोबेबिलिटी नहीं दिया हुआ है या प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है? हाँ जी, आपको चेक करना ही पड़ेगा। ओके, प्रोबेबिलिटी नॉट गिवन। सर फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन बोले तो इसका शॉर्ट फॉर्म है, सिंबल है सिग्मा, अंडर रूट समेशन आर माइनस आर बार स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एन। सर एक मिनट, इसका मतलब क्या है बताओ पहले, ये क्या है? ये पूरा ये समेशन बोलो तो एडिशन है, दिस इज एडिशन। सर आर क्या है आपको एक बताओ, इसका मतलब क्या है? मैंने जो अभी ये आपको ड्रॉ करके दिया था भाई साहब, मैंने आपको क्या बोला? ये इतना जो इसका डेविएशन है, ये डेविएशन यही आपका रिस्क है। अरे भैया ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आप और ये आपको इतना मिला है, मुझे वो डेविएशन काउंट करना है, वही निकालना है और वही उस फॉर्मूला में है, आर माइनस आर बार स्क्वायर। आर इज योर एक्चुअल रिटर्न, आर बार क्या है भैया? आर बार आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। एन स्टैंड्स फॉर व्हाट? नंबर ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन इन द क्वेश्चन। ओके सर, थोड़ा सा दिमाग में गया। सर अगर प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो आपका आंसर क्या है? बहुत सिंपल है बच्चा, ध्यान देंगे। जहां पे प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है वो तो आपको यूज ही करना पड़ेगा, समेशन पी आर माइनस आर बार स्क्वायर डिवाइड बाय एन नहीं करेंगे। जहां पे प्रोबेबिलिटी आता है वहां पे डिवाइड बाय एन करने का विषय ही नहीं आता है कुछ। मैंने आपको ऊपर भी एक्सपेक्टेड रिटर्न में मैंने आपको दो चीजें बताई, एक था सिंपल एवरेज और एक क्या था? प्रोबेबिलिटी। जब भी प्रोबेबिलिटी आता है आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है और एडिंग करना होता है, वहां पे डिवाइड बाय एन नहीं करेंगे। बट जब सिंपल एवरेज आता है, जब प्रोबेबिलिटी नहीं दिया है, तब आप क्या करेंगे? डिवाइड बाय एन करेंगे ही। ये सेम लॉजिक यहां पे भी वही है। ओके सर, ओके ओके। और वापस, रिस्क ऑफ सिंगल सिक्योरिटी, रिस्क इज टू बी कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ डैश। आंसर देंगे आप? स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन को रॉकेट साइंस नहीं है बॉस। स्टैंडर्ड डेविएशन एक मीडियम है, एक माध्यम है, क्या कंप्यूट करने के लिए? आपका रिस्क। बोले तो व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल। सर कंप्यूट कैसे करते हैं वो पहले बताओ। हमको एग्जाम पर्सपेक्टिव चाहिए, सिंपल चाहिए, सिंपल, हाई फंडा नहीं चाहिए मुझे कुछ। तो दो चीजें इसमें, सबसे पहले क्या है? आपको ये चेक करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी दिया हुआ या नहीं है। अगर नहीं दिया हुआ है, आपका फॉर्मूला इजी है। आई होप आप आपके डायरी में भी मेंटेन कर रहे हो, लिखो, सिर्फ मेन बुक में मत लिखो। सो अगर नॉट गिवन है, सो अंडर रूट समेशन आर माइनस आर बार स्क्वायर डिवाइड बाय एन। आर स्टैंड्स फॉर एक्चुअल रिटर्न, आर बार स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ आइटम्स और ऑब्जर्वेशन, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड ए प्रोबेबिलिटी इज गिवन, योर वर्क इज मोर इजियर बॉस। अंडर रूट समेशन पी आर माइनस आर बार स्क्वायर। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तुमको और मजा आएगा। मजा तभी आएगा जब तुमको फॉर्मूलाज लर्न है, तो दैट इज द मेन पॉइंट। ओके चलो सर, हमने सीक्वेंस करना है भाई, सीक्वेंस। मैंने आपको एक वीक का चैलेंज दिया है, उसके पहले तुमको पूरे फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे बॉस। आई एम टेलिंग यू, गारंटीड। और रट्टा मारने का भी गरज नहीं है। सबसे पहले क्या किया? रिटर्न ऑफ सिंगल सिक्योरिटी, ओके। एक्सपेक्टेड रिटर्न, दो मेथड, ओके। रिस्क ऑफ सिंगल सिक्योरिटी, दो फॉर्मूले के, खत्म करो बात। अभी इसके बाद अगर तुम तुम्हारे इंडेक्स में चेक करोगे, एक कंसेप्ट लिखा है मैंने भाई साहब, एक कंसेप्ट लिखा है मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बच्चा ध्यान देंगे आप प्लीज, इससे इजी आपको पोर्टफोलियो कहां पे नहीं दिखेगा, गारंटी बोल रहा हूं मैं, गारंटी। ओके, देयर इज नो कंफ्यूजन, इट इज वेरी स्ट्रेट, कीप इट वेरी बेसिक। ओके, एंड आई एम गारंटीइंग you will get a goddamn exemption in your paper. Okay, keep it very simple. Okay,
कंसेप्ट को समझ लो। सर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या है भाई साहब? देखो, आपको जब सिक्योरिटीज दी होती है, एग्जांपल ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई साहब इसमें आप सिलेक्शन करो, तो एक आम आदमी क्या करेगा, उसका रिटर्न चेक करेगा, क्या इसका 12% है, इसका 15 है, इसका 20 है, जो सबसे ज्यादा आप वही सिलेक्ट करेंगे। या दूसरा, अगर मैं उसका रिस्क चेक कर रहा हूं, फॉरगेट द रिटर्न पार्ट, मैं रिस्क चेक कर रहा हूं, तो जो सबसे कम है मैं वो उसको सिलेक्ट करूंगा। सिंपल है एकदम। अरे बट भैया मुझे एक चीज बोलो, व्हाट इफ आपको एक मीडियम ऐसा दे रहा है कि वो दोनों कर रहा है सिलेक्शन कंबाइन? अगर ये बात आपको झेपा नहीं रहेगा तो मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का एक छोटा सा लाइन लिखता हूं और आप खुद चेक करेंगे कि आपको समझ में आ रहा है क्या। इट इज द रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। टेल मी वेदर दिस लाइन इज गोइंग इन योर हेड और व्हाट। बहुत सिंपल तरीके से लिखा है बॉस, बहुत सिंपल है। इट इज द रिस्क per unit of what return. Now the point is what in this, whenever, and listen to me very carefully, whenever there is comparison of securities, जब भी सिक्योरिटीज कंपेयर किए जाते हैं तो ये पिक्चर में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अरे अगर सिंगल सिक्योरिटी का मुझे आंसर देना है ना, सिंगल है बाकी कुछ भी नहीं है, तो इट इज वेरी सिंपल फॉर मी यार, आई डोंट हैव टू कंपेयर ओनली ना, तो मैं एक ही सिलेक्ट, वही तो सिलेक्ट करने वाला हूं। बट जहां पे कंपैरिजन आता है सिक्योरिटीज का, तब आपको एक तगड़ा मीडियम चाहिए, और वो तगड़ा मीडियम जो है ना वो यही है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बहुत सारे बच्चे पोर्टफोलियो में ये भूलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब एग्जाम में अचानक से स्ट्राइक नहीं होता, और यार क्या फॉर्मूला उसका। इसलिए मैं आपको वापस बोल रहा हूं, आपको सीक्वेंस में जाना है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस को छोड़ो मत, ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, इजी लगेगा, लास्ट तक तुमको ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं। रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न, सर फॉर्मूला क्या है? और एक बात, मैं ऐसा नया कुछ भी इसमें बीच में नहीं इंटरफेयर करूंगा, मतलब जितना भी आपका फॉर्मूला का ये चालू है ना सीक्वेंस, उसमें ही आपका नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा। अभी तक तूने 3 या 2 ही 3 अपने स्टेप्स किए या 2-3 कंसेप्ट सीखे, इसमें इसका फॉर्मूला है। कैसे सर? सुनो, रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न, सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन is equal to स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्सपेक्टेड रिटर्न। देखो झेपड़ा का फॉर्मूला ये, कोएफिशिएंट इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्यों? मैंने क्या बोला आपको? रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न, पर यूनिट ऑफ रिटर्न, व्हाट इज रिटर्न? अरे एक्सपेक्टेड रिटर्न, अरे रिस्क म्हणजे काय? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मुझे आप एक चीज बताएंगे, अगर आप ये लेक्चर एकदम सिंसियरली देख रहे हैं, भाई साहब अगर दो सिक्योरिटीज है ए और बी, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अगर एक का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 2.52 आया और इसका आया 1.53, आप सिलेक्ट किसको करेंगे? जो ज्यादा है वो अच्छा है या जो कम है वो अच्छा है? सर जो कम है वो अच्छा है। इसमें क्या लिखा है भाई साहब? रिस्क लिखा है यहां पे, इट इज द रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। तो जो जिसका कम है वो ही क्या है, वही क्या होगा भाई साहब? सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्टेड है। रिटर्न में जो सबसे ज्यादा है वो सिलेक्ट होगा, जो नॉर्मल रिस्क है वो सबसे कम है वो सिलेक्ट होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में जो कम है वो सिलेक्ट होगा। समझ में आ रहा है आपको? लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी विल प्रोसीड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो। यहां तक भाई साहब ट्रेलर था, पूरा चैप्टर बाकी है। सिंगल ये जो बंच ड्रॉ किया ना मैंने, कुटे गेले थे, जो बंच ड्रॉ किया ना भाई साहब, ये बंच, ये इसमें से अभी तो अपन सिर्फ एक एक में खेल रहे थे। इसका रिटर्न क्या है, इसका रिस्क क्या है, अभी जितना भी करेंगे वो टोटल पोर्टफोलियो के कंसेप्ट के ऊपर करेंगे। ध्यान दो प्लीज, ध्यान देंगे आप, मजा आएगा आपको। पे अटेंशन प्लीज। कंसेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो,
सिंपल सिंपल सिंपल, एक लाइन लिखता हूं, बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज, बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज और कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, बंच ऑफ सिक्योरिटीज, अब जो भी नाम दो। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर देंगे आप प्लीज। आप खुद को ही पूछेंगे कि अरे यार इसका मतलब क्या रहेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम आस्किंग यू, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न। सर बहुत सिंपल है, सर बहुत सिंपल है, क्या क्वेश्चन पूछे आपने ये है? सर ये भैया अपना पोर्टफोलियो 1 2 3 4 5 प्रकार के सिक्योरिटीज है। सर आपने ही 10-15 मिनट पहले ये सिखाया हमें कि ये एक एक सिक्योरिटी का रिटर्न कैसे निकालते हैं। तो एग्जांपल ए बी सी डी और ई। सर 10%, 20%, 15%, 35% and 40%. So this is what we have done. This is what we have done from your above formula. जो तुम्हें रिटर्न का फॉर्मूला पता है, D1 plus P1 minus P0 divided by P0 into 100. सर हमने उससे ही ये निकाला है A B C D E। एग्जाम्पल है ये। तो अभी आप हमें ये पूछ रहे हैं कि इस एंटायर पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या है। अभी आप मुझे बताओ सर, अगर ये इतना सिंपल है तो मैं इसको सर प्लस कर दूंगा ना सर, इसका एवरेज निकालो, वही पोर्टफोलियो का रिटर्न है। ज्यादा क्यों दिमाग लगाऊं मैं? मुन्ना, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर इंडिविजुअल का मैंने ऑलरेडी आपको दिया है, ये सभी इसके आंसर्स है, और अगर मैं आपको पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न पूछ रहा हूं और अगर आपके दिमाग में ये दौड़ रहा है कि ये तो प्लस करेंगे या एवरेज निकालेंगे, इसका आंसर गलत होगा। सर कैसे गलत होगा? लॉजिक क्या वो बताओ भाई साहब। एक लाइन लिखो, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। सुन रहे हो? पोर्टफोलियो रिटर्न is the weighted average of individual securities where weights are proportion to amount ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाई साहब अगर आप इसका सिंपल एवरेज निकालोगे ना, वो शायद से आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? बिकॉज आपको क्या पता है कि सब अमाउंट, सब सिक्योरिटीज पे क्या अमाउंट सेम है? अरे भैया मैंने इसमें 100 डाले, मैंने इसमें 300 डाले, इसमें 400 डाले, इसमें 150 डाले और इसमें मैंने 250 डाले। अगर अमाउंट अलग अलग है तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू कंप्यूट सिंपल एवरेज। तो मुझे इसमें एक ही फैक्टर मदद करेगा और वो क्या है भाई साहब? वेटेड एवरेज ही निकालना पड़ेगा मुझे। तो एक मिनट, आप जो ये वेटेड एवरेज बोल रहे हो ना, ये वेट कहां से लेके आएंगे? अरे बॉस, वेट का मतलब वही होता है जिस प्रपोर्शन में तुमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है। अभी मैं इसको आपको तगड़ा एक टेबल निकाल के दूंगा। लेट एनी क्वेश्चन कम, लेट एनी क्वेश्चन कम, पोर्टफोलियो रिटर्न का टेबल आपका हिलेगा नहीं, यही रहेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल याद है, थोड़ा सा बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा, तो आपको शायद से ये याद आ जाएगा। कोशिश करेंगे आप प्लीज। सोर्स सिंपल, अमाउंट ओके। सर अमाउंट का मुझे अभी टोटल मारना है, इसके बाद मेरा आएगा वेट, इसके बाद मेरा आएगा रिटर्न, और लास्ट में जो कॉलम आएगा वो आएगा वेट इनटू रिटर्न। और ये जो इसका टोटल रहेगा ना, ये मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट।
ओके, आई एम अर्जिंग एवरीबडी टू प्लीज ड्रॉ दिस इन योर बुक। आपको मैं ये भी आपको बताता हूं कि आपको वेट आप कैसे निकालते हैं। आराम से करेंगे सब लोग, घाई मत करो, ठीक है। ये निकाला आपने, ये आपका टेबल है, ये आपका टेबल है फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, पोर्टफोलियो रिटर्न। सोच समझ के करेंगे भाई, सोच समझ, जब सम शुरू करेगा ना आपको मजा आएगा इसमें, ठीक है। और ये आपका वो आंसर है भाई साहब, ये आपका वो आंसर है पोर्टफोलियो रिटर्न का। मैं आपसे ये बोल रहा था एग्जाम्पल के तौर पे, ए बी और सी, ठीक है, 3 सिक्योरिटीज है, ये आपका पोर्टफोलियो बेसिकली। इसमें आपने 100 रुपए डाले, इसमें 300 डाले और इसमें आपने 600 डाले, ठीक है। सर इसका टोटल अमाउंट होता है 1000। सर वेट कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या करना होता है, सुनो, 100 का वेट 1000 में कितना है? 1000 का टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यू है, राइट। तो एक सिक्योरिटी का टोटल में वेट कितना है ये आपको निकालना है। तो इसका वेट इसमें कितना है आपको वो निकालना है, इसका वेट बी का इसमें कितना है वो निकालना है, और सी का इसमें। पहले ऊपर शुरू करेंगे, इसका ए का निकालेंगे, 100 डिवाइड बाय व्हाट, 1000। सर बहुत सिंपल है ये, 100 डिवाइड बाय 1000, इसका आंसर कितना आएगा? 0.1, 0.10, 0.30 एंड 0.60। कैसे निकाला? दैट अमाउंट डिवाइड बाय टोटल, दैट अमाउंट डिवाइड बाय टोटल, दिस अमाउंट डिवाइड बाय टोटल। रिटर्न तो आपने पहले ही निकाले रहेंगे ऊपर, ये आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे रिटर्न, और लास्ट में आपको सिर्फ वो मल्टीप्लाई करना है, आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा। आर यू गेटिंग दिस बॉस? सो portfolio return is the weighted average of individual securities where weights are proportion to amount of investment। सर इसका ये मतलब हुआ, सबसे पहले आपने सिंगल सिक्योरिटी का रिटर्न देखा, यस, फिर अपने कंसेप्ट के ऊपर गए जिसका नाम था एक्सपेक्टेड रिटर्न, ओके सर डन। उसके बाद भी वेंट डाउन टू अ कंसेप्ट कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जहां पे कंपेयर करने को आएगा तो ही हम यूज करेंगे कोएफिशिएंट। उसके बाद भी वेंट डाउन टू पोर्टफोलियो रिटर्न, और इसके बाद भाई साहब इसके अभी तक मैंने नंबर्स चेक नहीं किए, नंबर्स मैंने क्रॉस चेक कुछ भी नहीं किया है, मैं मतलब नंबर्स का मैंने आपको कुछ भी एग्जांपल दिया नहीं है। बट जब अपन सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, ट्रस्ट मी, अब ब्लाइंडली सॉल्व करेंगे, लाइक कंसेप्ट वो कैसे भी उनको घुमाने दो क्वेश्चन। मैंने आपको कितना बोला भाई साहब, कुछ गलत है, 42 क्वेश्चन है, 42 मॉड्यूल के क्वेश्चन शुड बी एट हाई प्रायोरिटी। अरे भैया ये करने के बाद आई डोंट थिंक ऑल्सो कि ऐसा क्वेश्चन जो आएगा आउट ऑफ द बॉक्स, सब एक इसमें से क्वेश्चंस गिरे अभी तक। ओके, पे अटेंशन। अभी जो कंसेप्ट कर रहे हैं ना भैया, वो बाप कंसेप्ट है, मजा आएगा आपको। पोर्टफोलियो रिस्क, सर बहुत सिंपल है सर हमको ऑलरेडी पता है कि सिंगल सिक्योरिटी का रिस्क कैसे कंप्यूट करते हैं, वो तो हमने ऑलरेडी किया है ऊपर, प्रोबेबिलिटी नॉट गिवन, प्रोबेबिलिटी गिवन, अंडर रूट समेशन आर माइनस आर बार स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो अभी आप हमें ये पूछ रहे हैं कि टोटल पोर्टफोलियो का हमें पोर्टफोलियो रिस्क निकाल के दो, तो हम वही लॉजिक लगाएंगे जो तुमने ऊपर लगाया अभी यहाँ पे, इट इज द वेटेड एवरेज, वही लगाएंगे। बट इसका फॉर्मूला थोड़ा फर्क अलग है, थोड़ा फर्क, एक रिदम के साथ हमको ये फॉर्मूला सेट करना है, रिदम के साथ। रिदम मैंने इसलिए बोला, आपको 2 मिनट में समझ में आएगा मैंने रिदम क्यों बोला। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, भाई साहब ये जो फॉर्मूला मैं लिख के दे रहा हूं, ये 2 फैक्टर मॉडल है, ये 2 फैक्टर मॉडल है। सर 1 मिनट, 2 फैक्टर का मतलब क्या है अभी? है मैं ये ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि इस पोर्टफोलियो में 2 ही सिक्योरिटीज है, 3 फैक्टर मॉडल भी है, 4 फैक्टर मॉडल भी है। ज्यादातर
आपको टू फैक्टर मॉडल ही पूछेंगे। फॉर्मूला लिखने से पहले एक छोटा सा फ्लैशबैक देता हूं आपको, तब आपको फॉर्मूला इजी जाएगा वो, बाकी कुछ नहीं। चलो ध्यान है सबका, एवरीबॉडी। स्कूल का फॉर्मूला है बच्चा, स्कूल का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर ये तो आता है हमें, ये तो आता है, यही फॉर्मूला इसका है, यही फॉर्मूला इसका है। देखो कैसे, सर आपने शायद से बहुत ही बड़ा अंडर रूट निकाला है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बहुत डरावना फॉर्मूला है? डरावना दिखेगा अगर आप पहली बार कर रहे हो तो, 2-3 बार के बाद ये बहुत ही अंडू पंडू हो जाएगा फॉर्मूला। सर कैसे लिखते हैं इसको? WX स्क्वायर HDX स्क्वायर प्लस, इजी है भाई, इजी 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 है, WY स्क्वायर HDY स्क्वायर, ओके, प्लस 2WX HDX WY HDY इनटू कोरिलेशन XY, कोरिलेशन XY। एकदम आराम से जाओ बच्चा, इजी फॉर्मूला है, होने के बाद ही उठने का वहां से। ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, और ये तीसरा पार्ट हो गया। ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट, और ये 3rd पार्ट। एकदम मक्खन फॉर्मूला है, कुछ टेंशन वाला बात नहीं है। जो ये मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है ना, ये उसका ही कॉपी है, ये वही कॉपी है भाई। मैंने क्या बोला? 2 फैक्टर का फॉर्मूला है, 2 फैक्टर, 2 सिक्योरिटीज है, एक्स और वाई। सो WX SDX बोले तो A, WY SDY बोले तो B, इसका ही मैंने फॉर्मूला में डाला है। सो आप एक रिदम में बोलेंगे, रिदम छोड़ो मत, रिदम शुरू करेंगे आप जहां पे भी बैठे हो। अंडर रूट WX स्क्वायर SDX स्क्वायर प्लस WY स्क्वायर SDY स्क्वायर प्लस 2WX SDX WY SDY इंटू कोरिलेशन XY। रूम में जाते आते घूमते फिरते किसको भी मिलो, ये फॉर्मूला रटो, इजी फॉर्मूला एकदम। अंडर रूट WX स्क्वायर SDX स्क्वायर प्लस WY स्क्वायर SDY स्क्वायर प्लस 2WX SDX WY SDY इनटू कोरिलेशन XY। 2-3 बार बोलो, बहुत ही इजी फॉर्मूला है भाई साहब। एक चीज सुनो जो मैं बोलने जा रहा हूं अभी, और वो ये है, आप जब भी फॉर्मूला लिखेंगे, भले तुमको 3 घंटे में फॉर्मूला याद भी आ गया, हर सर ने पढ़ाया था रिदम से याद, तो फॉर्मूला याद आ गया सर, बट कैलकुलेशन में माती मत खाओ। ये जो कैलकुलेशन है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये करके दिया 1 2 3 यहां पे। क्यों 1 2 3 दिया पता है क्या? आप जब कंप्यूट करोगे ना, तब आपके अंडर रूट में 3 अलग अलग फिगर दिखने चाहिए। जो महान रति लोग रहते ना, वो क्या करते पता है क्या? वो कैलसी में लेंगे, टक 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 करेंगे, ऐसा करेंगे, उसको दबाएंगे, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज ये परफेक्ट ये है, ठीक है, इसमें रॉन्ग जाने का चांसेस बहुत कम है। 3 फिगर्स आराम से लिखेंगे आपके बुक में। ये क्या हो गया? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सर हमको ये तो समझ में आ रहा है कि ये W का मतलब क्या है, ये तो वेट है, वो तो ऊपर आपने सिखाया कि इंडिविजुअल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमको पता है, वो भी आपने सिखाया ऊपर। सर एक चीज दिमाग में नहीं जा रहा है, हमारे दिमाग में एक चीज नहीं जा रहा है, और वो ये है, ये चीज क्या है सर? ये तो नहीं सिखाया आपने। तो यहां से ही तुम्हारा अगला कहानी शुरू होता है। मैंने क्या बोला है? मैं आपको पोर्टफोलियो कैसे सिखाऊंगा? सीक्वेंस भाई, सीक्वेंस को छोड़ना नहीं है आपको। एक सीक्वेंस जहां पे खत्म होता है ना, उसका दूसरा सीक्वेंस शुरू होता है। तो इसका जो अगला पार्ट है, वो कोरिलेशन ही रहेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इसका जो अगला पार्ट है वो कोरिलेशन। अगर आप इंडेक्स में भी गएंगे, इतना लिखा गया आपने यहां पे, यहां पे अगर आप यहां पे जाओगे, ये हो गया यस, ये हो गया यस, ये हो गया यस, ये भी हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। चेक ऑन व्हाट यू हैव डन। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है,
अगर मैं जब सम देना शुरू करूंगा ना, सम सॉल्व करने में तभी मजा आएगा जब तुमको थोड़ा पर फॉर्मूला आता है यार। मैं आपको अभी भी समझ सकता हूं, बड़ा बात नहीं है उसमें, बट थोड़ा फॉर वेट, पेशेंस। पहला दिन है भाई, पहला दिन है, फर्स्ट डे है। मेक श्योर यू राइट ऑल द फॉर्मूलास। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एडवांस कैपिटल बजटिंग, डेरिवेटिव, फॉरेक्स, म्यूचुअल फंड्स, this will form the major part of your syllabus, and yes, mergers also. So ये बड़े बिग चैप्टर्स हैं। अब मैं आपको और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कीप इट वेरी वेरी सिंपल, एंड दैट्स माय जॉब बेसिकली। वही मेरा काम, वो जॉब है कि आपको यही चीजें सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपका फर्स्ट है, मैंने वही बोला आपको कि दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव डन। ये आपका फर्स्ट पार्ट है जो अपन ने लिया है। फर्स्ट जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, कैपिटल बजटिंग, merger acquisitions, best chapter, business valuation, one more best chapter. So mutual funds important, and where is this? हाँ बराबर, और ये बाकी थ्योरी है, ठीक है। सो द पॉइंट इज व्हाट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। मैं अगले वाले लेक्चर्स में मैं आपको वेटेज भी लिख के दूंगा कि कितना वेटेज है। आई डोंट रियली ट्रस्ट ऑन दैट। आई हैव द वेटेज पैटर्न, आईसीए में रिलीज कर दिया है, but you know IC है, okay, come on, it's not the first time that something like they will do something outside the box, okay, that is why please do not focus on any one chapter कि मुझे यही करना है या वेटेज के हिसाब से आना है, और कुछ मत करो, जितना दिया उतना करना है आपको। हाँ, जितना आपका फोकस है मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपको कहां कहां डालना है वो ज्यादा, ठीक है। ट्रस्ट मी, AFM में आप एग्जाम से निकाल सकते हो। द ओनली थिंग इज व्हाट, जैसे अपन अभी कर रहे हैं, ये जो फ्लो अपन कर रहे हैं ना, वो वही सेम फ्लो आपका होना चाहिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में दे विल आस्क यू क्वेश्चंस, ओके। गिव मी 1 सेकेंड। हाँ अच्छा, मैं आपको नेक्स्ट इसमें क्या करता हूं, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल शो यू द पेपर विच रिसेंटली केम। जो रिसेंटली आया था पेपर में वो एक दिखाता हूं मैं आपको। 70-30 जो आपको लिखना है वो डिस्क्रिप्टिव लिखना है, ठीक है। उसमें भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के क्वेश्चंस बहुत थे, म्यूचुअल फंड्स के बहुत ज्यादा थे। अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स वाज म्यूचुअल फंड्स, फॉरेक्स का डेरिवेटिव था उसमें। तो स्टेप बाय स्टेप करना है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बाद आई स्टार्ट विथ योर म्यूचुअल फंड्स, फिर मैं डेरिवेटिव पे जाऊंगा, उसके बाद फॉरेक्स, देन वी विल प्रोसीड अहेड। फिर कैपिटल बजटिंग, एडवांस कैपिटल बजटिंग। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर वही तो रहेगा ना जो आपने किया है सीए इंटरमीडिएट में, एनपीवी, IRR, PI, इसके अगला क्या है कैपिटल बजटिंग में? अरे बहुत कुछ है। यहाँ पे आपको रिस्क एनालिसिस का भी चेक करना है, okay, so a lot of things are there. My only concern to everybody is what कि एक काम करेंगे आप, AFM exclusively के ये बैचेस हैं, okay. I also tell you one thing, CA में फाइनल जो मैं ऑलरेडी पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोडेड है। like obviously the content is same, but I'm sticking with the CA फाइनल मॉड्यूल। जो मैं आपका जो मॉड्यूल है मैं उस पर स्टिक करने वाला हूँ, ठीक है। so watch all these lectures, they are going to be of much importance to all of you. As you all already know, Kapil sir, he has started with the most awaited subject, that is the financial reporting, वो शुरू किए हैं। तो उसका भी आप लाभ लीजिए। अगर उसका आपने लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। every day he's going to come live at 8 AM, so you can confirm your admissions. All other details are there in the description box. You might be from anywhere from India, आपको जो बुक्स है वो डिलीवर किए जाएंगे। सेकेंड चीज ये है, अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो, you can come offline also. द ओनली थिंग इज, अगर आपका ऑफिस वगैरह है तो टाइमिंग थोड़ा फार यहाँ होगा, बट जो FR के लेक्चर्स है वो सुबह ही रहने वाले, 8 बजे ही रहने वाले हैं, ठीक है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेक्चर है वो शाम को शिफ्ट किए जाएंगे एक्सट्रीम इवनिंग को, ओके। तो एक बार बैच जब फ्रीज होगा देन ओनली विल स्टार्ट, ओके। A lot of people at final level they prefer recordings because it becomes very easy for them for their convenience as per their office timings and all. But if you are like if you stay in the vicinity of HGPS branch, then you can take the advantage of it and come down straight and sit for the classes here offline, okay. Rest all, we'll meet again tomorrow. Your FR is already there at 8 AM. उसके बाद आपका financial management भी रहेगा। And remember one thing, these are all numbers, I mean this
इसमें अमेंडमेंट्स इतना नहीं आते हैं, पोर्शन अभी चेंज हुआ है. सो अगर आपका एग्जामिनेशन द मंथ ऑफ 25, 26 और फॉर दैट मैटर 27 में भी, आई डोंट थिंक दिस विल बी अ बिट ऑफ इशू. अब आपके नॉट 27 विल बी वेरी फार, एक्चुअली 26 तक चेक कर सकते हैं अपन. वहां तक अगर आपका एग्जाम रहेगा, आप बिंदास ये वाले रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं, कंप्लीटली नॉट टू वरी अबाउट दैट. ओके, फॉर रेस्ट ऑफ द डिटेल्स यू कैन जस्ट obviously dial up the number which is there in the description box. Okay, thank you so much and have a great day. Thank you.